जिस्म को झुकाए दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, तूने अपने प्यार करने वालों के लिए अनदेखी अच्छी चीजें तैयार कर रखी। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से ममलू कर, ताकि हम हर बात में सब चीजों से बढ़कर तुझी से मदद रखें और तेरे इस वादे का पूरा अपना देखने पाए जो हमारी हर ख्वाहिश से कहीं ज्यादा थी। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो हिस्सा रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। शीघ्र ही भावना की राज तो तमाम लोगों की बदी का पावर है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत अदमिया नबी का सही बात उसका 38 बाब 4 का 6 और 8 का 10 पढ़ने का सर। उस वक्त सरदार ने बादशाह से कहा कि अदमिया कत्ल किया जाए, क्योंकि वो उन जंगी मर्दों के हाथों को जो उसके शहर में बागी हैं, तमाम लोगों के हाथों को उनसे ऐसे वादे कहकर सुस्त कर देता है। इसलिए वो उन लोगों की शांति करनी बल्कि बड़ी का हुआ है। तब सिदकिय्याह बादशाह ने कहा, देखो वो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि बादशाह मायला की किताब कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने अदमिया को पकड़ा और कैद खाने के सेफ के अंदर मलिक शेहजादे के गहरे पोस्ट में डाल दिया और उन्होंने अदमिया को कसरत से उसकी लटका दिया और पोस्ट के पास न था पर कीचड़ था। सो अदमिया कीचड़ में धंस गया। अब्दुल मलिक बादशाह के पास घर से निकला और बादशाह से बात करके कहा, ऐ मेरे आका बादशाह, उन आदमियों ने जो कुछ अदमिया से किया है सो कर दिया है। जिसको उन्होंने उड़ा दिया है वो वहाँ भूख से मर जाएगा, क्योंकि शहर में यहूदी नहीं है। तो बादशाह ने अब्दुल मलिक को हुक्म देकर कहा कि जहाँ से भी आदमी अपने साथ ले अदमिया को सिखा एक तरह इसके और आप बड़े उसने जुम्मे की बात
اس کا 12واں باب 49 سے 53 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استحقاق لینا ہے، تو میں ایسا بے چین ہوں کہ جب تک وہ نہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے مخالفت رکھے گی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھے۔ اور گزارنی، تو آج کے کلام کی روح سے ہمیں بتایا گیا نے پڑھا کہ ان طلاقوں کا موضوع کیا ہے؟ مخالفت۔ جب پھیل جاتے ہیں پھر تو بہت ساری مخالفتیں جو ہے وہ جنم لیتی۔ تو آج کے کلام میں ایک مخالفت ہے، کسی کے خلاف ہونا، اور دوسرا جو مین موضوع ہے وہ ہے جنگ۔ اور یہ دونوں ہی منفی الفاظ ہیں، پازیٹیو نہیں ہے، مثبت نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو ہم دونوں کو جو جنگ کرتا ہے اور جو مخالفت کرتا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ فلاں بندہ، ہم شکایت بھی کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میری مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے سامنے رکھا، انگریزی کی ایک کوٹیشن ہے کہ اسٹینڈ فار دی ٹروتھ ایون اف یو اسٹینڈ الون۔ آج جب ہم مسیح کو دیکھتے ہیں تو مسیح میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اور ہر ایک اس بندے کے ساتھ مخالفت اور جنگ ہے جو مسیح کی فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ ایسی بات ہے یونس صاحب نے کہا کہ برائی اور اچھائی کی جنگ، صلح اور جنگ کی، بدامنی کی جنگ، انصاف کی اور ناانصافی کی جنگ، جھوٹ کی اور سچائی کی جنگ۔ بہت سارے ایسے لفظ ہیں جن کو باترتیب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون سی جنگیں مسیح نے ہمارے خلاف جاری کر۔ مسیح نے ساری تعلیمات میں جتنے بھی الفاظ ادا کیے اس میں ہمیشہ اس نے یہی کہا کہ اس نے کہا کہ اپنے آپس میں پیار کرو اور اپنے ہمسائے سے پیار، اور اپنے اور کس سے پیار کرو؟ شاباش، کس سے؟ اور اونچی کہو، کرتے کو نہیں نا، تاں بڑی بول دے، اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو۔ تو مسیح خدا کو کہتا ہے کہ یہ تعلیم ہے میری، اور جو بندہ اور بندی میرے اس اصول، میری اس تعلیم کے خلاف چلے گا تو میں سرے عام اس کے لیے کہتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ زمین پر آگ بھڑکاؤں اور کہ وہ جل پڑے۔ مسیح کہتا ہے کہ میں آگ برساؤں، کیسی کہ اچھائی برائی کو غرق کر دے یا اسے جلا دے، انصاف ناانصافی کو ختم کر دے، جھوٹ جو ہے، سچائی جو ہے وہ جھوٹ کو ختم کر دے۔ اور اسی طرح فہرست چلتی جاتی ہے کہ مسیح کہتا ہے کہ ایسی مخالفت اور ایسی جنگ کرنے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح خداوند کا مینڈیٹ ہے، اس کا منشور ہے، اس کا اعلان ہے، اس کی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دھمکی
धमकी तो बहुत बुरा लफ्ज है, लेकिन एक किस्म की आप को कह सकते हैं, उसने बता दिया, वार्निंग दी है कि अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तो मेरी आप लोगों के साथ जंग है। तो जंग में लोग क्या करते हैं? जंग में जायज होता है ना सब कुछ। जंग में एक ने जीतना होता है और जंग में एक ने एक दूसरे पर वार करना होता है कि नहीं? लेकिन मसीह खुदा कहता है कि अगर कोई इस किस्म की जंग मैंने लड़नी है, वैसे तो वो जंग लड़ने के लिए दुनियावी जंग की बात नहीं कर रहा, रूहानी जंग की बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर मैंने जंग लड़नी है तो मैं ऐसी जंग लड़ूंगा कि झूठ बोलने वाले को मैं मात दूंगा, जिंदगी में कभी वो कामयाब नहीं होगा। और जो शख्स मर्द है या औरत है अपने घर में या अपने खानदान में झूठ बोलता है, झूठ को लाता है, और जिस घर में झूठ दाखिल होता है वहां पर आया हुआ रिजल्ट भी वापस चला जाता है। ये बड़े बुजुर्ग कह गए कि ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਝੂਠ ਵੜ ਜਾਏ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ आया हुआ रिजल्ट भी वापस चला जाता है। तो कभी आपने गौर किया है कि मेरे खानदान की तंदुरी यानी कि नीचे जाने का सबब क्या है? मेरे खानदान में क्यों यके बाद दीगरे बहुत सारे मसाइल और तकलीफें खत्म ही नहीं होती? क्या मैंने और आपने कभी अपनी जाती जिंदगी पर गौर फौज किया है? आपके पास चार आप तो दरख्त नहीं लगाते हैं, लेकिन दरख्त अपने खेतों में लगाए तो मंडी लेके जाओ, दरख्त लगे पैर, सोचो मैंने क्या किया होगा जिंदगी में, दिन में कितने झूठ बोलते हैं। हम अपनी बात भी करते हैं, फादर से बात, सिस्टर से बात, हम रिश्ते नहीं होते, हमसे भी ऐसी बात हो जाती है, लेकिन हम दिन में तकरीबन बहुत दफा ये सारे काम कर जाते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम से हो जाते हैं। लेकिन रात को सोने से पहले हमारी नाइट प्रेयर होती है और उसमें जब हम अपने शाम का गीत गाकर खुदा का शुक्रिया अदा करके सारे दिन के लिए, तो 5 मिनट के लिए जो हमें लीड का काम होता है या सिस्टर, तो वो कहता है एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस, ज़मीर का इम्तिहान। हम फिर अपनी आंखें बंद करके 5-10 मिनट के लिए सोचते हैं कि सारा दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आज मुझसे कौन कौन सी गलतियां हुई। गलतियां हो जाना ठीक है, लेकिन गलतियों पर पशेमान होना और उनको सोचना, और फिर जब हम गलतियों पर पशेमान हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, अगर ये छोटे छोटे गुनाह है तो तौबा का अमल करने से खत्म हो जाते हैं, तो हम वहीं पर कहते हैं कंट्रीशन यानी तौबा का अमल पढ़ते हैं। और अगर हम उस जमात में इबादत में जो नाइट प्रेयर होती है, तो वो एक्सक्यूशन लगा खुदा पर रहम फरमाए, आपके गुनाहों को माफ करे और आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। अगर बड़े गुनाह हुए 10 मुंह में से कोई गुनाह तोड़ दिया है तो फिर इतराफ का सक्रमेंट, हम अपनी बात कर रहे हैं, पहले खुद अपने आप को तो बताऊंगा, फिर आपसे कहूंगा कि आप क्या करें। और उसके बाद आखिर में जब हम सोने लगते हैं तो ये बात into your hands Lord I commend my spirit, ऐ खुदावन मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने गुनाहों की माफी मांगकर, अपनी की हुई गलतियों पर शर्मिंदा होकर हम माफी मांगते हैं, और फिर रात को सोने के वक्त हम ये कहते हैं मैं अपनी रूह के हाथों में सौंपता। सुबह का सूरज पता नहीं मैंने और आपने देखना है या नहीं। अभी इंटरनेट पर चल रहा होगा, क्या पता है कि क्या हो गया होगा? कोई जानता है कि हमारे फादर है वो इबादत नहीं जा रहे साहू वाला, तो जैसे मैं यहाँ पर नया नया आया था, मुझे भी कई इलाकों का नहीं पता, बापू से बात होती है, कभी कभी बापू से बात पहले चले जाते हैं तैयारी करें, और फिर वहां के किसी मखसूस नुमाइंदे से कहते हैं कि रास्ता बता दें।
तो वो बंदे ने रास्ता बताया कि ये शॉर्ट रास्ता है, आप इधर से आ जाए। और जब वो वहां पर गए तो वहां पर फाटक वाला बंदा गायब था, वो पता चाय बनाने चला गया या कहां पर चला गया, तो उसने फाटक शाटक नहर के पास बंद नहीं किया। हम जो फादर और सिस्टर से बेवकूफ नहीं होते कि हम किस तरह की आम लोगों की तरह जल्दी कर दें कि बस मैं जल्दी जल्दी गुजर जाऊं। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो मैं कहीं पर सफर नहीं करता, बेशक कोई पूछने वाला नहीं। गाड़ी का जो ऑयल है वो अगर एक नुकता ऊपर चला गया, मैं सफर नहीं करता, मैं कहता खुदा का खासा नुकसान हो जाए। मैं ये महसूस करता हूँ कि कोई मुझसे ये सवाल करेगा कि आप इतनी बड़ी शख्सियत है और आपके पास आप रूल की वायलेशन कर रहे हैं, तो उसने एतबार किया किस पर? उन लोगों पर जिन्होंने उसके रास्ता बताया। फादर जी ऐ मेरे पिता जी इधर भी आओगे तो साड़ा गिरजा नजदीक है। और लोग पूछ रहे हैं ट्रेन की आवाज नहीं आती, कैसे नहीं आती? तो जब आप चला रहे हैं कि ठीक है मैं गुजर जाऊँ, तो ट्रेन तो पहले सर पे चढ़ कर जाती, तो वो उसी दौरान ही हादसा जब हो गया तो एक फादर उधर ही गाड़ी को आपने देखा है कैसे हो गया, दूसरा फादर जो है वो बच गया, वो साथ थे लेकिन काफी शरीर जख्मी। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर उसने रात को ये दुआ ना पढ़ी होती, इनटू योर हैंड्स लॉर्ड आई कमेंड माय स्पिरिट, तो हम अपनी आने वाली जिंदगी के लिए तैयार है। मौत है, स्टेट की मौत हमने अभी रात दिया, हम तैयार हैं खुदावंद कि हमने सुबह जो है पता नहीं सुबह का सफर देखना है कि नहीं। कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग ये सोचते हैं कि मैं सवेरे उठ के खाना काम करना है। तो फादर ने तो आज की नमाज़ी करनी थी। तो इसलिए मौत ये नहीं है कि वो फादर है इसलिए इसको मौत छोड़ जाएगी। मौत पर हक है और उसने आना है, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह हमें कहता है कि आप अपने आप को तैयार करें और मेरे बताए हुए रास्ते पर आप लोग चले। तो हक और सच की यहाँ पर लड़ाई है, जंग है और मुखालफत है। और आप देखते हैं कि जो लोग नडर होते हैं वो बड़े बड़े सिस्टम्स को छेड़ देते हैं, ऐसे है ना। और जो लोग होते हैं खुशामदी होते हैं वो ग्रुप के साथ मिल जाते हैं, वो अपनी मौजूदा जिंदगी जो है बचा देते हैं। लेकिन जिन्हें मसीह खुदावंद की तरह सच और हक की गवाही देनी पड़ती है वो इसकी तरह लटकाए जाते हैं और इसकी तरह अकेले छोड़ दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी भी इलाके की बात है कि वहां पर एक सिस्टम चल रहा है, जैसे मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ, यहाँ का लोकल नहीं हूँ, तो मैं वहां से मुझे समझते समझते सिस्टम को थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं अगर कोई चीज गलत हो रही है और मैंने होने नहीं देना, तो कई बंदे आके कहने के फादर जी छड्डो मेरा ਤੁਹਾਡਾ भी काम 2-3 साल तुसा रहन दो जिन्हें कर रहे लोग कर रहे 80 सालों में कर रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ हाथ पे छोड़। लेकिन अगर मैंने इसकी पैरवी करनी है, मैंने इसके पीछे चलना है, मैंने इसको जिंदगी दी है, मैंने इसकी बात माननी है, तो दूसरी बैठ के मार लो तो मैं नहीं, मैं गलत कह के छड़ना भाग लोग छुरियां मारे फायर बोलते, मैंने ऐसा करना ही करना। डर क्यों डर? क्योंकि जब ये नहीं डरता तो मैं क्यों डरूं? जब ये मेरा मॉडल है, ये मेरा नमूना है, ये मेरी जिंदगी का मरकज है, तो मैं फिर किसका पैरोकार हूं? मैं किसके पीछे चल रहा हूं? मैं किसके लिए कहता हूं कि खुदावंद मैं तेरे पैर नहीं करता हूं और मैं तेरे पीछे सलीब उठा कर चलूंगा। जब मैं लोगों की कह सकते हैं कि मुखालफत से डर जाऊंगा, लोगों के रिएक्शन से डर जाऊंगा, लोगों की बातों से डर जाऊंगा कि लोकी तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो रही है, लोकी तुम्हारे बारे च यह गल्लां करन दे, लोगों को ना ही छेड़ो, ऐसा ही है। तो फिर भी बंदा छेड़ी जान मतलब है कि
खुदावंद दे नाल वादा कीता है कि नहीं भाई ये भावें मेरे जो मर्जी कर लैण, मैं तो तेनू वहाना लोकां नूं नहीं वहाना। मरने के बाद मैंने इसको मुंह दिखाना और इसको ही जवाब देना है। मैं तो अपनी आखिरत संवारूंगा। तो अगर मेरी मौत पर हक है, आनी है, तो चलो तुम्हारे हथों ही आ जाए, लेकिन गलत बात को गलत कहने से मैं कभी नहीं करूंगा। और अगर मैं कर जाता हूं तो मैं आप लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये पिंड वाले इन्हां नाल गल करके नाराज हो जाते हैं कि ये नहीं होणगे, ना भाई एक बंदा बैठा है नमाज पढ़ावांगा, तुम्हारी तलाक से नहीं है। आप गलत काम के लिए खुदावन का घर छोड़ देते हैं, इबादत के लिए नहीं आते, तो 100 बिस्मिल्लाह जाएं। लेकिन आपकी क्या कहते रिकंसिलिएशन, आपको दोबारा से मिलाप करवा के सुलह करा के तो वापस लेके ले भी आना ना, तो फिर अगले बार वही गल करनी है तो नाराज हो गए। की करूं, क्यों करूं? क्योंकि खुदावन के कलाम में कलाम तो बदल मैं नहीं सकता, कलाम तो मैं बदल नहीं सकता। या तो मैं अपनी किताब ला दूं कि जिसमें आपकी मर्जी के मुताबिक खुदा का कलाम सुनाया जाए। तो फिर क्या आप समझते हैं कि मसीह की ये बात साबित होती है कि नहीं कि मैं इसलिए आया हूं कि जमीन पर आग भड़काऊं? वो कहता है कि मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं आया, बल्कि मैं जुदाई कराने के लिए आया हूं। जमीन करवाने के लिए नहीं आया, जुदाई करवाने के लिए आया हूं। इसका मतलब यह है कि जो खानदान के अंदर भी 5 10 लोग हो सकते हैं, और आप देखते हैं कि पंजाबी कहते हैं जिन्हें अपनी आखिरत को ली हुए ना, तो वो फिर बड़ा जमीन से भलिया फिरता है। एक वाक्य सुनाता हूं, सरहौदा का वाक्य है, इलाका नहीं बताता। जिस तरह कोई चौधरी होते हैं ना इलाकों के, इस तरह ये एक शख्स था, और ऐसा शख्स के एडी ऊंची पागल नहीं सी, कदम पागल नहीं, कपड़िया नहीं, ते कह सकते हैं कि वो चीका मारने वाला गुस्सा वो पा के ते जो महल्ले च लंघदा सी, तुहाडा तो बड़ा पिंड नहीं, उहदे महल्ले च ते लोकी आखदे बड़ा ही रोबदार है, कभी आदमी है ना कि उहदे कोल ते बदमाश कह रहे हैं, ये बहुत कह सकते हैं इमोरल लफ्ज है। इस किस्म का शख्स था कि जिन्हें कह सकते हैं कि बंदे के गिटिया के विच गोलियां मारियां सन, कहंदे ने वो आउंदे आ दुआ बंद करो, एवें उहदे मुंह की लग रहा। इस किस्म का इस किस्म की दहशत थी उस बंदे की। तो जिहड़ा बंदा कहता सी नहीं कि बदतमीज है, नहीं उतना की गल करनी, हर बंदे के साथ लड़ाई, हर बंदे के साथ नाइंसाफी, वो मोहल्ले वाले लोग डर जाते थे। सच्चा वाकया सुना, चर्च में खड़े होकर मोहल्ले वाले डर जाते थे कि यार क्या मसला है, वो तलुकात भी इस्लाम का भी काफी पैसे दे के सारे काम करवा देता, किसी को मार पवानी, किसी को करवा देना, किसी को थाने पहुंचा देना, नोट के वापस भेज देना। और जेड़े बंदे ने आखना भाई वाधू पैसे लग जाते हैं, बस ठीक है खुदा दे सुनो कि खुदा एदा इंसाफ करे। तकरीबन 33 घर थे, 33 घरों की आहें, तकलीफें, और ये भी ये गाने जनत के लिए यकीन खुदा के सामने खुदावन एदा इंसाफ था। हो सकता है अपना 33 घराने में जो एक खातून या एक मर्द या एक बच्चा जिसे खुदा दे नजदीक होएगा, खुदा की दुआ सुनो। सब नहीं तेरे समेत। तो खैर जवानी सही गुजार गई, रोब दबदबे में, बदमाशी में, लेकिन उम्र के साथ साथ सारी चीजें आ जाती हैं। इंसान सब कुछ खरीद सकता है, ना अपनी सेहत खरीद सकता है और ना अपनी जिंदगी और जवानी वापस वो ला सकता है जिसमें वो कभी होता है और था। समझ आ रही गल कि नहीं? ऐसा टाइम आया कि औलाद भी तंग सी, तो बाबा हो गया तो बाबा पै गया मुझे। तो जब ये हो गया तो बच्चों ने कहा कि फादर जी से सैक्रामेंट देना है, और टाइम हो गया रात को तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम, और इतनी आंधी और इतनी तूफानी बारिश। तो उन्होंने कहा जैसे भी फादर जी आप आए मेहरबानी करें, क्योंकि इनकी हालत ना रहे। हम चले गए,
बाबू जी और मैं इकट्ठे गए, बड़ा मुश्किल तकरीबन घंटा लग गया पहुँचते पहुँचते। जब हवा चल रही होती है, आंधी और बारिश हो, तो आप लोगों के घर जैसे बड़े बड़े हैं ना, ऐसे लंबे लंबे घर, तो बाहर गेट पर दरवाजा कोई खटखटाए तो इतनी आवाज नहीं आती है अंदर। तो हम गेट पर पहुंचे तो अपने बच्चों को कह रहे जाओ बाहर बादल आ गया है। तो कहना कि बात तो सीसीटीवी कैमरा लाया है, इन्हों के लिए पता चल गया कि हाथ उसका जोर से पकड़े रखा। तो फिर कहता है कि इन्होंने कोई खींच लिया है, इन्हें लैके जा रहा है और अंधेरा है, मेरी लत्तां जिहड़ियां ने पीछे जा रही हैं, कोई मेरी लत्तां नूं खिंच रहा है, ये बहुत खौफनाक है, मैनूं ना बचा। और छोटे छोटे बच्चों ने, मोहल्ले के लोगों ने उसकी वो कह सकते हैं कि कंडीशन देखी, जिसे कहते हैं बेबसी की कंडीशन। जिन्होंने उसकी दहशत देखी थी तकरीबन 40-45 साल, उन्होंने उसकी बेबसी देखी और वो कह रहे थे कि इन्होंने देख के सामने खुदा याद आ गया, सामने आना चाहिए। और जब मैंने लोगों को बाहर निकाला, मैंने कहा रास उसके बाद उसे सैक्रामेंट दिया और बड़ी पुरस्कून किया इंतकाल। आखिर तो ये हमारी जिंदगी का कह सकते हैं आखिर है। हर चीज के वास्ते तुसी कह सकते हैं कि लालच इधर भी खींच लो, इधरों भी खींच लो, ओदे को खोलो, ओदे को खोलो, तुसी बिना सुनने के आराम एक एक मरला, दो मरला, दो इंच देते नहीं, भरा ने सिर पर अड्डे में एक दीवार करता है, एक दीवार करता है। कई बार आज इतनी ऊंचाई है सिर बिल्ला रोड देते, मैं ना इतनी जमीन दे दी पई है ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। तो ये सारी जिंदगी ऐसे करते हैं, बच्चे पालते हैं, बच्चों की साथ रहते हैं, तो बच्चे ਤੁਹਾਡੀ उम्र ढली नहीं पहला सोचने लगे जमीन के लिए नहीं है नहीं बात। तो आप बच्चों की खातर पता नहीं क्या करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, कोर्ट जाते हैं, सर फाड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा पता नहीं की दुनिया में कर देते हैं। झूठ की तो बात जो है बदला है, बहुत कुछ हम कर रहे हैं। और जब ये सारे काम कर देते हैं तो आखिर में दूसरों से हम सीखते नहीं हैं। हमारे चर्च हमें इसकी इजाजत भी देता है, मैंने 20 ऐसी मौतें देखी हैं जिनको कहते हैं नेचुरल डेथ। किस तरह मौत होती है कि आप कि पहले ये जुबान बाहर निकलती है, लंबी जुबान हो जाती है, इस जुबान से सारा कुछ करते हैं ना आप लोग, लंबी जुबान होती है, फिर लपेटे रहती है ऐसे पीछे गोल होती है और गोल होके आपकी ये हलक इसके अंदर जाते हैं, हलक बंद होता है जिससे आपकी सांस जब बंद होती है, जब मुंह बंद होता है अंदर वाला ये हलक, फिर ये नाक जो है ये फूलता है, नथने से करते हैं, नाक खुलता है और फिर जब उसकी रूह निकल जाती है नाक से भी हवा और फिर जुबान खुलती है, ऐसे लगता है मेरी हवा पंजाबी में अगर समझने की करने होती बात पूरी फूक निकल गई। कहते हैं ये लफ्ज आप हंस रहे हैं लेकिन ये अच्छा लफ्ज, ये वो हवा है, रूह आपकी हवा है, रूह आप किसी तरह की है जिसको खुदा ने कहा कि आपकी जिंदा आपके बुद्ध के अंदर उस जिंदगी का दम होगा, वही दम जो है वो आपका बाहर निकल, हमारे पति के दम निकल गए, उन्हें दम दे देते हैं, कहते हैं कि ये लफ्ज। तो ये है नेचुरल मौत जो खुदाबंद की तरफ से तय है कि जब हमारी उम्र हो जाती है हमें इस तरह इस दुनिया से जाना है। तो आप इस कैथोलिक गांव में रहते हैं तो पुराने बुजुर्ग मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जो नेक मौत के लिए दुआ करते थे और करते हैं अभी तक। बोल गए उनका ड्रामा पढ़िया जानिए बाबू जी पढ़ा देते हैं उनका पूछना है हम पूछिए तो ड्रामा को नहीं आने उन्होंने एक दुआ सी नेक मौत के लिए दुआ। कितने बुजुर्ग हैं जिनकी उम्रें हो गई है वो रात को सोने से पहले नेक मौत के लिए दुआ करते
ہے. نیک موت میں آپ کو کیا بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے سے شروع کرتا ہوں. جیسے ہمارا کل کو فادر اس دنیا سے چلا گیا تو فادر چلے تو رات کو دعا کر کے سویا ہوگا. اسے تو پتا تھا خداوند کے ہاتھوں میں اپنی روح کو سونپ دی ہے. لیکن نیک موت یہ ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں آپ کے آمنے سامنے دائیں بائیں ہوں. آپ کے پیار کرنے والے آخری الوداع خدا حافظ کہنے کے لیے کھڑے ہوں. آپ کے اپنے آپ کی خدمت کریں. آپ کے اپنے سارے فرائض ادا کریں. یہ نہیں کہ تسی ڈوب جو تے تہاڈی لاش جڑی ہے وہ ریسکیو والے کڈ کے سڑک تے لمبے پا دین تے بعد وہ شناختی کارڈ لا کے کڈ کے پھر 4 دن جن پولیس والے رکھی رکھن تھانے چ جڑے اوتھوں جائے تے پھر اینڈ چ جو چیر پھاڑ کر کرا کے ودا تہاڈوں آ کے کوئی خالم خالی کرا دین تے تسی او سی کے توڑی بھر کے تے جا کے دس دے جی ساڈا عزیز ہے. سمجھے؟ تو یہ ایسی زندگی ہے کہ آخر میں آپ کو اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اپنوں کو خدا حافظ کہنے کا موقع ہے. خدا حافظ کہنے کا موقع ہے. اور اس میں سکھاتی ہے کہ آپ کو ہر روز دعا کرنی. خداوند موت تے پر حق ہے لیکن موت کے لیے میرے بچیاں دے چاہے میرے مرتے ہیں آپ کے مرتے ہیں یا بہت یہ سیلاب جیسے وہ گنیر اور سواب کی طرف آیا کہ 400-500 لوگ غرق ہو کے سوتے سو گئے دکانوں والے رہ گئے کوئی شے نہیں بچی. ماں نے بچے کو الوداع نہیں کیا, بیوی نے خاوند کو الوداع نہیں کیا, بیٹی نے باپ کو الوداع نہیں کیا. دیکھا بہن نے سب کچھ دیکھا, بھائی نے سب کچھ دیکھا. تو یہ ہے موت جو آنی ہے لیکن خداوند سے یہ دعا کرنی ہے خداوند مجھے ایسی موت نہ آئے. تو تسی موت کا نام لے کے کہنا مرن ساڈے دشمنا بھی مرنا ہے سوری مرنا ہے. دشمن مر گئے چل پہلا مر جان گے تواڈے تو لیکن جانا تسی سب نے جانا. جتنی جلدی ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جانا تو ہے تو پھر ہمارے اندر خوف خدا بھی پیدا ہوگا. جدو یہ آخر رہنی ہے کہ میں اس دنیا تے سدا رہنا میرے بغیر دنیا چلنی کوئی نہیں تو یہ چیز ہے. تھکتے نہیں گئے اج ابھی انہیں نے بھی تاں کرنا لمبی لمبی گلاں سنا رہے ہیں. تو چلو اج یونس صاحب بغیر دیکھ کے آواز پہ مجھے تھوڑی سکڑ نہیں جانے تے موسم ٹھیک ہو جائے گا. تو خداوند آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ بھائی تیار رہے, تیار رہے. سنی تھی کہ سارا کچھ جمع کر دیا. خداوند ہے اے اعلان آج تجھ سے تیری جان طلب کر لی جائے گی. تو اس لیے مسیح کی مخالفت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطرہ بولنا ہے. جس نے مسیح کی مخالفت کر لی, مسیح مخالف کون ہوتا ہے؟ جو مسیح کو نہیں مانتا. تسی تے کہتے نہیں جی اسی تے پکے عیسائی کہتے ہو نا, اسی پکے نہیں ہیں تے پرانے نہیں ہیں. پکے تے پرانے جڑے نا میں جانتا ہوں کہ سائی نے مسیح سائی کو نہیں ہوندا مسیح نوں ہوندا. فرق پتہ چلیا جے کہ سائی نے اور تے سنسا سائی وہ ہے جو مسیح کو نہیں مانتا اور مسیح وہ ہے جو مسیح ایسی زندگی اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے. ہم عیسیٰ مسیح کو نہیں جانتے, ہم یسوع مسیح جانتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ راہ اور زندگی میں اور میری تعلیم کیا ہے؟ خدا کو پیار کرو اور ہمسائے کو پیار کرو, معاف کرو, معافی دو, درگزر کرو اور برداشت کرو. پر میری غلط سنانے یہ نہیں آئی جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسیح کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والا مخالف مسیح ہے. اور مخالف مسیح کون ہے؟ جنرلی کون ہے مسیح کا مخالف ہے؟ نیک ہے, بڑا مخالف بھی ہے. اچھی بولو تو نام ڈرتے رہنا کام دے ورگے سے کرنے ہیں, نہ لین لگے اسی ڈرنے ہیں. وہ خوش ہوئے گا کہ میرا نام بھی نہیں لین رہے ہیں. مخالف مسیح کون ہے؟ شیطان. اور کلام
कहता है उसका अंजाम क्या होगा। मुकाशफा की किताब में आप पढ़ें कि उसका अंजाम गर्क होना है, तबाह होना है और खुदा की जिंदगी से दूर ऐसी आग में झोंका जाएगा जो बुझेगी नहीं। तो जो मसीह की तदबीर के खिलाफ चलते हैं वो मुखालिफे मसीह हैं और मसीह की उनके साथ जंग है। आखिरी बात समझाता हूँ, मुझे अगर आपके साथ जंग शुरू की हुई है तो जी थोड़ी जिंदगी तकलीफा मुसीबत परेशानियां धक्के ठुड्डे नाइंसाफियां बहुत कुछ ना ये सिर्फ है कि मैं कितने मुखालफे मसीह ते नहीं है वफा लैन नाल असीं नाल मसीह लिखन नाल असीं मसीह नहीं। मुखालफे मसीह वो है जिसके साथ उसकी जंग है अगर उसकी तलीम के खिलाफ चल रहा। तुसीं दो बंदे लड़ पे आपस में दोनों ही मसीह एक दूसरे सिर पाड़ देते हैं, एक भावें हक ते होए एक ने दूसरे ने नाइंसाफी की है, पर मसीह कहता है कि भाई अगर है एक दूसरे को बर्दाश्त करो। उसे टाइम दो बंदे रियलाइज कर रहे कि असं दोनों मुखालफे मसीह जेड़ा बंदा झूठ बोलन तो बाद ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੁਖਾਲਫੇ ਮਸੀਹ क्योंकि मसीह से झूठ नहीं बोलता। किसी माड़े का साथ नहीं दे रहा बंदा बल्कि माड़े के खिलाफ चल के झूठी वो मुखालफे मसीह अपना बदला लैन वास्ते वो किसी को दबा रहा है वो मुखालफे मसीह की गल करना लाता जाए जिन्नियां भी गलत मनफी नैगेटिव चीज़ां ने वो करांगे जैसी मुखालफे मसीह हो। इसी वजह तो मैं सुबह मेरे इलाके गया दसिया मैं कि मसीह कहता सी कि आसमान की कलाम च लिखा कि आसमान की कसम ना खाना क्योंकि वो की है आसमान की है खुदा दा ते ज़मीन की है वो लैकर थल्ले तक जिन्नियां भी शैतान ने खुदा दियां ने तुहाडे सिर दे वाल भी ते तुहाडी अपनी जिंदगी भी तुहाडी अपनी नहीं खुदा दी दित्ती हुई मान है। अपनी कसम भी नहीं खानी, अपने बच्चों की कसम नहीं खानी, अपने माँ प्यो की कसम नहीं खानी, ना जमीन की ना जमीन के समान के दरमियान जो चीज़ा ने उन्होंने कसम नहीं खानी सारिया खुदा दियां ने। वो तख्त ते ऐ पैर की चौकी ते असी जो मैं गल दूसरी शादी मर जाए फिर दूजी करनी है जी क्या ना मर जाए फिर दूजा करना है ते इससे तो इलावा होर कुछ नहीं। दूसरे की शरीयत से चार चार तो मैं क्या साथ उन्हें असीं पुराने हैं ना वो तो 700 साल बाद आए तो साड़ियाँ वध होनी चाहिए ने। इस वजह तो मैं अहमदाबाद की गल सुना लगा एक बंदे ने 10 शादियाँ की 10 तुसी सिर्फ अपने सारे बाशऊर आखिरी गल करना कि ना सब लोग बाशऊर सोचना सिर्फ झटकी गल अगर समझ आ जाए देखना सन कौन है साड़ी कमिटमेंट जो कलाम के हाथ रखा जाता है लोग होंगे खुदा कलाम ये तिन्ने की मौजूदगी का निशान है काल यही है ना। बपतिस्मा तुसीं लेते हो ते चर्च आते हो तुसीं वेखो पिंड दे विच कई अमवात होंदियां ने कदी देखिया फादर साहब गए ने उहदे वास्ते जनाजा करन बाबू जी कर देना फिर उसके बाद दूसरा कर देते हो फिर भी करके बाबू जी कर देना। शर्त की है कि तुहानू अगर फादर को जनाजा पढ़वाना है तो या तीसरे दिन नमाज पढ़ी तो करना की दसो सही है। ये नहीं कि फादर ने किटिया पानी पिया जा नहीं सकता या फादर रूला लगना जा नहीं सकता इतों उठ के उसे नहीं जा सकता फादर को मना किया कि इन्ने काम नहीं करने काम इसे वास्ते बनया ना फादर
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। समझ लगी कि मेरा तो तारीफ मतलब सारी का मतलब है। कितने लोग मरने के बाद अपनी वसीयत लेके जाते हो कि मैं मरिया ते मेरे बाद ऐ जमीन ऐ किला इनू दे दो, ऐ घर इनू दे दो, ऐ इनू दे दो, ये जदादा ते किसे मसीह की ख्वाहिश नहीं है कि बपतिस्मे वास्ते गिरजे हमने आ ते बपतिस्मे जो मेरी इब्तदा इत्थे मेरी इंतहा इत्थों होनी चाहिए। जजना लेके जाते हो तो सलामी करन गिरजे आते हो नहीं, सलाम कर रही गिरजे और जो इस दुनिया में जान लगे हो तो इस खुदा के घाव बोल के इत्थे सलाम करनी भावें करवानी तुहाडे मुर्दा जिस्म कोल ही, लेकिन सलाम करवानी। लेकिन तुसीं किसे दे रहम करम ते अपनी औलाद ते ऐसी सुस्ती दुनिया च आण दी के विच मशवरे देने वाले आए होंदे ने, अपने ज्यादा होए इत्थे ही कर लो, हुण बंदे उठ के उत्थे जाण ते चौलां दी देग पकाइए, सब रंगी पकाई देग तो खाना नहीं ते 10,000 रुपया मरी नवाज देनी है ते पेट च टुर भी नहीं सकदे, उन्हें भी भज के आउणा वो गिरजे ही लभण डे ने। चलिए, अगर औलाद अपने मां बाप को कोई रिवॉर्ड देना चाहती है तो मां बाप रिवॉर्ड देवे कि मैं अपनी मां ते अपने प्यो ऐस गिरजे दे विच आखिरी सलामी दे के भेजना चाहना ते मैं ओदी जिंदगी दे विच ओदी मगफरत करवाना चाहना। जिंदगी च ओने अपने गुनाहां दा इतराफ कोई नहीं कीता होना ते मैं ओदे वास्ते पाक मास दी पाक कुर्बानी गुजरानी। फिर मैंने तुहानू एक काहन दी लोड़ है, वो कुर्बानी जिहड़ी है वो तुहाडे इस पाक कुर्बान गाह दे उत्ते चढ़ाएगा ते तुसीं अपने घरां दे विच अपने गंदे मंदे टेबल कट के उत्ते चिट्टा कपड़ा पा के आखो फादर जी आओ इत्थे रखो पाक प्याला, फादर जी आओ इत्थे रखो यीशु दा पाक बदन, फादर जी आओ नाल गटर चलदा होए, नाल नाली चलदी होए, नाल बदबू चलदी होए, गंदी मंदी जगह दे विच गली दे विच बाजार दे विच तुसीं 100 किस्म दी गंदगी उत्थे पाउंदे हो ते उत्थे मसीह नूं जो सारा सट पा के तुसीं चुक के लैके उत्थे जाना चाहते हो। इसे वजह तो फादर नहीं होंदे तुहाडे। त्रीजी मंजिल कब्रिस्तान, 3 मंजिलां ने। पहली मंजिल ते बाबू जी जाके उत्थे घर च दुआ करदे ने, दूसरी मंजिल च काहे आप उहदे वास्ते अगर कलीसिया घर वाले चाहन ते पाक दी पाक कुर्बानी। लेकिन मैं इतना यकीन करो कि परेशान है बाबू सिवान को पूछिए मैं कि फौतगी हो गई की करना है, उन्होंने तीसरा करना उन्होंने नहीं कि इत्थे दुआ कर दो तो उन्होंने कहा जी फादर जी तो नहीं होने इत्थे दिखाया है कोई नहीं तुसीं है कहते हो कि नहीं कहते। वो दुआएं करनी असीं तम्मुआं टुट के तुहाडे चौल नाट नहीं चले जे तुसीं खांदे हो, तुसीं आंदे कि असीं गिरजे टुट के ते भावें पिछों चौल ही ना खा लैण। ते अपने मां बाप नूं, अपने अजीज़ां नूं, अपने प्यार करने वालियां नूं तुसीं ते खुशकिस्मत जे तुहाडे घर दे पिंड दे विच घरां दे कोल खुदा दा घर च ना जिउंदिया जी तुसीं गिरजे आउंदे जे ते ना मरिया तुहाडी मंजीत चुकी जाती है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਈਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਰਚ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਰ ਫਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, समझ आ गई गल ते असीं मैं इस गिरजे च ला लिया तुसीं गिरजे च लियाओ जनाज़ा दूसरी मंजिल ते पाकमास कराओ मैं करांगा, तीसरा करोगे तो मैं पाकमास की पाक कुर्बानी चढ़ावांगा। फिर तुहाडा किला जिहड़ा छोटा नहीं बड़ा जो पोस्टर ला के कहोगे ना इत्थे लिख दिओ कि फादर अपने काम तो गाफल है, करदा पिया ये जनाज़ा नहीं पढ़दा पिया ये पाकमास नहीं करदा पिया। लेकिन तुसीं जे काम करना है तो फिर मैं किला लिख के ओह चलाना जे सारे लोग जिहड़े ने क्रिश्चियन है ही नहीं, एक कैथोलिक है ही नहीं, ये जिहड़े ने ये बार बार ही अपने कमरे पढ़ा कर बाहर कर देते। कितने लोग चर्च नहीं आते, कितने लोग नहीं आते चर्च, वो कितने से साल नहीं होंगे दिमाग वो 12 साल का नहीं
चलो आखिरी का जान की करना है। ते किन्ने ने मां प्यो अपने बच्चों को कहना यार मेरा जनाजा होया है गिरजे कर, फादर को करवाई, फादर भी करना है, गिरजे के खाना जो है वो लाजमी। तो इस वजह तो जिन्हें घर च करा उन्होंने वास्ते असी तो कोई नहीं, असी कमरे च बह रहे करा बाहर आने से घर आने इतों सोचो अपनी जिंदगी की, थोड़ी मर्जी नहीं है। किसी टाइम दफा जो कहो जी फादर साहब मेरे बच्चे अगर मुँह जोर ने ना मेरी गल मनन तो मेरी गल में दसनी है भाई यह पुराना काम जरा करना। तो फादर तुम भावें पिट के मारे भावें औलाद होवे सकी मैं ज़्यादा चुक के इतने लै तुम भावें टांगा सूता कट के जी फादर जी असा नहीं चुकन देना, तो मैं बंदे लैके मैं लैके जाना कि कोई बंदे ने कहा है कि मेरा ज़्यादा चर्च से पढ़ना प्यार करो ते जान ना छड़ाओ ते मुखालफे मसीह ना बनो। काहे ने कुर्बान गाह दे वास्ते ते कुर्बान गाह काहे दे नाल बाकी ते अगर बहु भी अवेलेबल रही ते कोई ईमानदार जिहने बपतिस्मा लिया आया वो भी जनाजा बना सकदा है। अब जनाजा भी सैक्रामेंट नहीं, लेकिन अगर तुम ख्वाहिश करते हो कि साडे अजीज बच जाए, मेरी मां वो बच जाए, मैं जिंदगी कुछ नहीं किया अपने मां के प्यो वास्ते, मैं बस कभी आखिरत करवा सकना वा, मफरत करवा सकना वा, मैं पाक मां की पता करवानी खुदा मुझे गुजराना। इसी वजह तो आज जो रोटियां छोटियां खाते हो ब्याहां के उत्ते ये भी सारे कैसे ये भी उन्हें लंगड़ियां ढेरानियां अपने आप को बुला लंगड़ा मुहताज गरीब यतीम और कोई समझते हो तो फिर बैठ के रोटी खा लिया करो, क्योंकि तुम्हें तो करो रोटी लभदी को नहीं। तो इस वजह तो कितने भी देख पके तो रोटियां लै के खा लिया करो। कलाम जी का फिर जो पकाते हैं उन्होंने वास्ते भी कि कलाम जी का कोई ना रोटी ने किसी ने बचाना जी, रोटी उत्थे खवा के यह चीज़ नहीं सकते। तो जो थोड़ा इन्ना नहीं गुजारा तो सिर्फ इतवार करो फादर जी ना ही साढ़े बुजुर्ग का यदि कुर्बानी मैं मतलब ना लेना खुदावंद ने उन्हें मदद फरमा दे। ये गल्लां की समझ कोई नहीं आती, क्यों नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि हुण जो मैं गल्लां कीतियां जो देखियो इसका मतलब भी गलत निकलना है, इसका मतलब भी गलत निकलना है कि इनू आने मुखालफे मुखालफत कि तुहाडी ये जिहड़ी बरादरी सिस्टम है इहनूं चैलेंज करना कि तुसीं गलत करदे जे। ते जे मैं तुहाडे नाल कलाम अज प्रकाश किया तो मैं कट के कहा यस्सू मसीह जो इस दुनिया में चला गया कि कौड़े बट्टे की रोटी कितने पकाई जे लभ गया तेरे मुंडा का पकाया मां मरियम की कुर्सियां कितने लवाइया सन। अब पौधे ना बेटा जवान बेटा मरिया, यूसुफ मर गया सी ते ओदा की सिस्टम कीता सी, होर नबी पैगंबर मर गए ते उन्हां दा की होया सी है जी किते। तो तीसरे की रोटी पकाई सी, गोश्त पकाया था जी की। इस वजह तो इस वजह से मैं दसना चाह रहा कि ये जी कौड़े वट्टी थोड़ी रोटी होंगी जिन्होंने तो दुख होता है तो ढिड नवाला निकलता ही लगता ही नहीं है। जे त्रै प्लेटा खा जाते जो तो चंगा हो लग गया चौल तो खवा गया ना सानू। तो कौड़े वट्टी की रोटी है कि इंसान ने जिंदा तो रहना तो जो चाचे बाबे होंगे ने उस तरह चूल्हा नहीं चलता अपने घर, वो जो मेहमान बाहर उधरों आए उन्होंने कोई रोटी नहीं खा सकते, उन्होंने वास्ते कह सकते कि सुक्की जी चने पा के ऐज की रोटी पका लो बस गुजारा करना, चौल खा लो तो पानी पी लो कि वो दिन गुजर जाए। तो गोश्त बरियानी पता नहीं की खुशी की दावत घर वाले खुश ने चंगा आया साड़ी जान छुट्टी मर गया मगरों दसता है पिछले रोटी खवा के अभी जज ने भी खवाई दी ना नहीं तो रोटियां खवा मात्र लंबा कम और पासे भी गल्ला लै गए दसना, लेकिन ये जरूरी नहीं। अगर मैं तुहानू ना दसा तो फिर फादर ना घसीटिया करो बरादरी के कामों के। अब मैनू कोई आता बंदा आता कहता जी ना साढ़े बरादरी के कामों में आया करो तो बिशप को लैटर दे के ना थोड़ी ट्रांसफर करा देंगे, मैं करा देना, मैनू कोई दो त्रै बंदे तो तब्दील हो जाएंगे तो मैं भी किताब च लेना कि चलो 6 2 बंदे तब्दील मेरी गल मन गए, बाकी 500 के जो 48 जो
ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਲੱਗਾ ਜੀ ਰੂਹ ਬਚਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਕੋ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੋ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦੇ ਬਚਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਸਾਓ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਨਾਫਕਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੋ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5,000 ਸਟਾਈਪਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 5,000 ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾ ਦੀ ਫੀਸ 5,000 ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, 2.5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵਹਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਾਦਰ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹੋ ਨੂੰ 2.5 ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵੇ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਟ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਖਾ ਲੋ ਖਾਇਆ ਰੋ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਿੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਖਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੰਦਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਮੁਖਾਲਫੇ ਮਸੀਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ आप सबके लिए और खासतौर पर खानदानों के लिए सभी
Masumashi, Volunteer, our Simon Sadar, Kuala Kishu, इस मकसद के लिए दुआ करें। इस इलाके में बारिश जैसी अदा करे ताकि लोग बारिश की वसीला से अपनी फसलों को सलाह कर सकें। दुआ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि आकाश गुजार रफ़ाए नसीब शमाए आरफ मसलन के लिए कि खुदावंद ने सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा तमाम मरहूमों को खुदा हमारे नाम करते हैं जैसे गुरु की और जो हमारे दिलों में कबूल करो मसीह हमारे खुदा की जिक्र के और मजा नहीं।
स्पॉन्सरशिप की आती से हमें ये मैं बख्शी आप हमारे हाथ ये फल हमारे लिए हमेशा हमेशा से हमेशा अजीज दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर के वापस मकबूल हो। ऐ खुदा हमारे खुदा ये नजराने कबूल फरमा जिनसे हमारी निजात का शानदार काम अंजाम पाता है। अनायत कर कि हम तुझसे ये चीजें पाकर और इन्हें तेरी नजर करके तुझे ही को पाने के काबिल हो। मसीह हमारे खुदा के वसीला से खुदा खुदा के साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस साल के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे का शुक्रिया अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए और उन कुदरत की कुदरत से इंसान बना और हमारी माँ से पैदा हुआ। उसने दुख सहते वक्त अपने हाथ भी पर फैलाए, इसीलिए हम फरिश्तों और आसमान के मुर्शिदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं।
है तू पाक, और हर पाक चीज तुझी से आती। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर पाकों को दे, ताकि ये नजराने, ये रोटी और मैं पाक को बरी, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दूध उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद नए का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, मेरे खून का प्याला जो तुम्हारे बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों की माफी के लिए पाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। तेरे बेटे के मरने और जी उठने की याद करते, हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया की याद कर और सब में बात को लियो चौथे और बिशप जोसेफ अरशद अपने तमाम काहिनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे रेवरेंड फादर मुश्ताक जिसे कल तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है, बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ था, उसी तरह वो जी उठने में भी इसके साथ हमारे भाइयों बहनों और बच्चों को भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीच तमाम मरहूमों को याद कर उन्हें अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका मुबारक शौहर, मुबारक रसूलों और उन तमाम मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद व सना कर सके। के साथ उसी तुझ काबिल मुतलक खुदा बाप और कुदस की काबिलियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए सब खड़े होकर यीशु की सिखाई दुआ में शामिल। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी
میں سلامتی بخش داخل تیری شکر کی توفیق سے اپنی مبارک امید اور اسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے عذاب اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ اے خدا کے برے عزیز بھائیو بہنوں، یہ ہے خدا کا برا ایمان کے گاؤں چلا جاتا ہے۔ ہم سب مبارک ہیں جو اس بات پر ایک زیارت میں بلائے گئے ہیں۔